other forms of government. In the previous section, we saw that democracy is the most popular form of government in today's world and that there are different forms of democracy as well. Let us now look at the other forms of government and understand their basic structure. अभी प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि आज की दुनिया में डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, टुडेज वर्ल्ड में, है ना। और डेमोक्रेसी के डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं। तो अब हम आगे जानते हैं कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी पढ़ते हैं और उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। मोनार्की, as we saw in chapter of tapestry of the past, Mahajanpads were headed by king who were guided by the Sabha or Samiti and were expected to take decisions and advice of these institutions seriously. As empires were built and expanded across India, kings began to gain immense power. Yet they relied on the council of ministers and a network of officials to help them to govern the empire. जैसे हमने टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो महाजनपद हैं उनके लीडर कौन थे, हेड कौन थे, किंग थे, ठीक है। वो सभा की और समिति, जो उनकी सभा है ना, उन और समिति की सलाह मानते थे। बाद में जब एम्पायर बड़े हुए तो राजाओं के पास ज्यादा शक्ति आ गई, लेकिन वो शासन के लिए मंत्रियों और अधिकारियों पर निर्भर रहे। In many cases, the king also sought the advice of learned scholars on matter related to dharma. Of course, there were also examples of kings who used their power to subjugate their people. In some part of the world, kings had all the power. They made the laws, enforced them, and also decided the punishments. In some cases, they claimed to have received divine power from the god. However, in many parts of the India, the power of the Raja was neither absolute nor beyond question. तो कई बार धर्म से जुड़े मामलों में विद्वानों से सलाह लेते थे। कौन लेते थे सलाह? राजा लेते थे, ठीक है। लेकिन कुछ राजा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर जनता को दबाते थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में राजाओं के पास पूरी ताकत थी। वे कानून बनाते थे, लागू करते थे और सजा भी तय करते थे। कुछ राजा कहते थे कि उन्हें ये शक्ति भगवान से मिली है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में राजा की शक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी और उस पर सवाल उठाया जा सकता था। आपको इस पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, चलो उसको रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। सब्जुगेट, टू टेक कंट्रोल ऑफ पीपल और अ प्लेस बाय यूजिंग फोर्स एंड मेक द पीपल ओबे। इसका मतलब ये है, जब कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों पर या जगह पर कब्जा कर ले और लोगों को अपनी बात मनाने पर मजबूर करें, उसको क्या बोलते हैं? सब्जुगेट। The king was expected to make a decision while staying within the limits of Raja Dharma. This meant ruling according to Dharma and ensuring the welfare of all people. This was an ideal that kings did not necessarily achieve. इसका मतलब ये था कि राजा से कहा जाता था कि वह राजधर्म के अनुसार फैसला लें। इसका मतलब था कि वह धर्म के नियमों से शासन करे और जनता का भला करे। लेकिन सभी राजा ऐसा नहीं कर पाते थे। थिंक अबाउट इट, what might happen if the king considered himself to have divine powers? How would he rule over the people? अगर राजा खुद को भगवान से शक्ति प्राप्त मानता तो क्या होता? वह लोगों पर कैसे राज करता? In the Shanti Par of Mahabharata, when Bhishma, the wise elder of Kuru dynasty,
lies on the bed of arrows awaiting his death. He teaches Yudhishthira, the eldest Pandava, at great length on a good governance, justice, and the moral responsibilities of a Raja. A Raja is not just a ruler, the welfare of his people is the highest priority. He must apply the law without bias to ensure fairness and equality. He must not get attached to power, as is Forrester's ego and corruption. He must seek guidance from the wise advisor to ensure just the well informed decision. The Raja must understand that his authority is temporary and bound by dharma. महाभारत के शांति पर्व में जब भीष्म किस पे लेटे हुए थे? बेड ऑफ एरोज पे लेटे हुए थे, है ना? तीरों की शैया पर लेटे थे। तब उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि एक अच्छा राजा कैसा होना चाहिए। राजा का सबसे बड़ा काम प्रजा का भला करना है। उसे सबके साथ समान न्याय करना चाहिए और पक्षपात नहीं करना चाहिए। ठीक है? राजा को सत्ता, अहंकार और भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। सही फैसले के लिए उसे बुद्धिमान की सलाह लेनी चाहिए। उसे यह भी समझना चाहिए कि उसकी शक्ति हमेशा के लिए नहीं है और वह धर्म के अनुसार ही बंधा है। King Chandrapida wanted to build a temple to his deity, but the hut of a stubborn cobbler stood in the way. When the builders complained to the king that he did not even allow them to take measurements, the king blamed them for not asking the cobbler's permission first. The king received the cobbler, who explained that his humble hut was like a mother to him and as precious to him as the palace was to the king. The misery people feel when their homes are forcibly taken away can be described only by a god who has fallen from his celestial car or by a king who has lost his kingdom. जो किंगचंद पीड़ा थे वो अपने देवता के लिए एक मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन जिद्दी मोची उनके रास्ते में आ गया। ठीक है, जब राजमंत्रियों ने राजा से शिकायत की कि उन्हें जमीन का मतलब मेजरमेंट नहीं लेने दिया, तो राजा ने उन्हें डांटा और उन्हें कहा कि पहले तुम लोगों ने मोची से पूछा क्यों नहीं, है ना? तो राजा ने मोची को बुलाया। मोची ने कहा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी उसके माँ के समान है और उतनी ही कीमत है जितनी किसी राजा के लिए उसका महल। जब लोगों के घर जबरदस्ती छीने जाते हैं तो उनका दुख ऐसे ही होता है जैसे कोई देवता अपने रथ से गिर पड़े या कोई राजा अपने राज्य खो दे। Nevertheless, the cobbler expressed his readiness to let go of his herd if only the king would come and respectfully ask for his permission, which the king did, giving him adequate money as compensation for those who desire happiness. There should be no false pride, concludes the text, while the cobbler praised the king's commitment to dharma even towards a lowly subject. फिर भी मोची ने कहा कि वह अपनी चोट को भूलने के लिए तैयार है, वो अपनी झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर राजा खुद आकर उससे सम्मान के साथ माफी मांगे। राजा ने ऐसे ही करा और उसको मोची को पैसे दिए, कंपेंसेशन के उसमें, है ना, मुआवजे के रूप में पैसे दिए। इस कहानी से ये समझ आता है कि जो लोग खुशी चाहते हैं उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोची ने राजा की धर्म के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की, जो उसने एक साधारण प्रजा के लिए भी दिखाई। आपको इस पेज के कॉर्नर पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, चलो उसको रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। सोवरेन
Sovereign indicates that the source of power of a country is independent from external influence. सोवरेन का मतलब ये है कि देश की शक्ति बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र होती है। मोनार्क्स, kings or queen who inherit their position from their family, usually passing it from one generation to the next generation within the royal family. इसमें बोला जा रहा है कि राजा या रानी जो अपनी पोजीशन है ना अपने परिवार से विरासत करती है ना प्राप्त करती है वो उसे आमतौर पर शाही परिवार में से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपते हैं। Monarchies today. A monarchy is the type of government that is ruled by a monarch. King and queen are also called monarchs who exercise their sovereign power. Monarchies are usually hereditary. Typically, the eldest son of the ruling monarch become the next king. Today, we have two types of monarchy. Absolute monarchy. In an absolute monarchy, the monarch has complete control in the making of laws. मोनार्की एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जहां राजा और रानी रूल करते हैं। राजा और रानी को भी सम्राट कहा जाता है इसमें मोनार्की में, ठीक है, जो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं, है ना। मोनार्की यूजुअली हेरिडिटरी होती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है राजा का, वो ही नेक्स्ट राजा बनता है ना। मोनार्कीज टू टाइप की होती है। एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है, इसमें जो राजा होता है, राजा को ही कानून बनाने की पूरी शक्ति होती है, इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड एंड एजुकेटिंग व्हेन दे आर नॉट। Saudi Arab is an example of an absolute monarchy. Here, the king holds all power and governs according to the Islamic law. However, he appoints a council that advise and assist him on governance, but he is not bound by the council's advice. नियमों का पालन करना और ना होने पर फैसला लेना। एजुकेटिंग का मतलब है विवाद होने पर मामले का न्याय करना। सऊदी अरब इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। इसमें क्या होता है, राजा के पास सारी शक्ति होती है और वह इस्लामिक कानून के अनुसार शासन करता है। राजा एक काउंसिल बनाता है जो उसे सलाह देती है, लेकिन वह उसकी सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं है। Constitutional monarchy. Let us consider an example of a different kind of monarchy. The United Kingdom or Britain is also a monarchy. The head of the state is the king or queen, but he or she has only nominal power, and the real power of the executive is exercised by the prime minister. The legislative power is exercised by the parliament. This means that all the laws are made by the elected parliament, and executive power is exercised by councils of ministers led by the prime minister. So, while Britain has a king, it's really today a parliament democracy. This kind of monarchy is called constitutional monarchy. यह एक अलग प्रकार की मोनार्की का उदाहरण है। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में एक राजतंत्र है ना, एक मोनार्की है। वहाँ का राजा या रानी केवल नामात्र का प्रमुख होते हैं। असली सत्ता प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। कानून बनाने का काम संसद करती है, इसलिए जबकि ब्रिटेन में राजा है, वास्तव में ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इस प्रकार की मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। थियोक्रेसी,
A theocracy is a form of government where the country is ruled by the rules of religion and religious leaders. Iran, whose full official name is Islamic Republic of Iran, has a unique political system combining elements of both a theocratic and democratic governance. Their constitution is based on the fundamental principles of Islam, the country official religion, the supreme leader who has the ultimate authority over the legislature, executive, and judiciary, is elected by a group of Islamic clerics, and his terms is for life. There are also an elected president and a parliament that take care of everyday governance. The intent of the republic is to establish a society based on Islamic norms. Other theocracies currently in existence include अफ़गानिस्तान एंड अ वेटिकन सिटी। थियोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे देश को धार्मिक नियमों और धर्म गुरुओं के अनुसार चलाया जाता है। ईरान, जिसका पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, वह एक खास तरह की सरकार रखता है। इसमें धर्मतंत्र और लोकतंत्र दोनों शामिल हैं, मतलब थियोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस दोनों शामिल हैं। ईरान का संविधान इस्लाम पर आधारित है। वहाँ का सर्वोच्च नेता जिससे जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, धर्म गुरुओं का समूह मतलब ग्रुप, है ना? द्वारा चुने जाता है और वहाँ जीवन भर पद पर रहता है। साथ ही वहाँ एक चुना हुआ राष्ट्रपति और संसद भी है, जो डे टू डे के काम संभालता है, मतलब जो रोज़-रोज़ काम होते हैं उनको संभालता है। अफ़गानिस्तान और वेटिकन सिटी भी एक थियोक्रेसिक वाले देश हैं, जहाँ पे थियोक्रेसी गवर्नमेंट होती है। डिक्टेटरशिप A dictatorship is a form of government in which one person or a small group possesses absolute power. They do not have any limits imposed on them by a constitution or law. The 20th century witnessed many examples of dictators who created extremely difficult circumstances for the people. We will only see two of them here. डिक्टेटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एक व्यक्ति या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, उनके पास पूरी शक्ति होती है ना, उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। उन पर कोई कानून या संविधान की रोक नहीं होती। 20th सेंचुरी में कई डिक्टेटर्स थे जिन्होंने लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी। यहाँ हम केवल दो उदाहरण देखेंगे, है ना, टू एग्जाम्पल ऑफ देम हम रीड करेंगे। Soon after Adolf Hitler was appointed Chancellor of Germany in 1933, he passed laws that gave him full power and eliminated the opposition. He was now a dictator. Convinced of the superiority of his people, he believed that Germany should rule the world and dominate inferior races. He was responsible for killing of at least 6 million Jews. This is known as Holocaust, as well as hundreds of thousands of Roma and other groups of people. In fact, he was the cause of World War II in year 1939 to 1945. 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, है ना? उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिससे उनको पूरी शक्ति मिल गई, है ना? उनकी जो पावर थी वो सारी उनके हैंड में आ गई और जो अपोजिशन पार्टी थी, है ना, वो खत्म हो गई। अब वह डिक्टेटर बन गया, है ना? हिटलर को लगता था कि उसकी जाति सबसे श्रेष्ठ है और जर्मनी की पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। उसने कम से कम, है ना, उन्होंने कम से कम 6 मिलियन जूस की हत्या करवाई, जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं। उसने लाखों रोमों और दूसरे लोगों को भी मरवा दिया।
और जो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1939 से 1945 तक, कौन रिस्पॉन्सिबल है? वही रिस्पॉन्सिबल है, हिटलर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए, which resulted in immense loss of life and property in many countries। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ उससे क्या हुआ? बहुत इमेंस लॉस हुआ लाइफ में, है ना? बहुत लोगों की जान गई और प्रॉपर्टी में भी बहुत लॉस हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत नुकसान हुआ। Idi Amin was a military dictator in Uganda. He was directly responsible for the merciless killing of thousands of people. Many Indians whose ancestors has migrated to Uganda a few generations before were forced to flee the country. Idi Amin युगांडा में मिलिट्री डिक्टेटर थे, है ना? उन्होंने भी हजारों लोगों को बेरहमी से हत्या करवाई, है ना? उनकी हत्या करवाई। कई भारतीय जिनके पूर्वज युगांडा में थे, उन्हें भी देश छोड़कर भागना पड़ा। आपको इस पेज के राइट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, चलो उसको रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। Caricature, a drawing that makes someone look funny or foolish because some part of the person appearance is exaggerated। यहाँ पे कैरिकेचर किसकी दी है? इदी अमीन की, है ना? मतलब इसका मतलब क्या होता है? ऐसी वो ड्राइंग होती है जिसमें किसी व्यक्ति को मजाकिया या बेवकूफ दिखाया जाता है क्योंकि उसके चेहरे या शरीर के किसी हिस्से को बढ़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। जैसे इसमें इनका जो बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट है पूरा, है ना? हेड से नीचे उसको क्या कर दिया? बहुत बड़ा बना के दिखाया गया है। डोंट मिस आउट। The Roma or Romani people were originally nomads based on their linguistic and cultural characteristics. Scholars have determined that they originated in India. They first settled in parts of Eastern Europe but have now migrated to several countries of the world. Don't miss out. द रोमा एंड रोमानी पीपल वर ओरिजिनली नोमैड्स। इसका मतलब ये है जो रोमा और रोमानी पीपल हैं वो क्या थे? ओरिजिनली नोमैड से। नोमैड का मतलब क्या होता है? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिनके पास कोई परमानेंट हाउस नहीं होता, है ना? वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, है ना? खाने पीने के लिए, ठीक है? और स्कॉलर्स ने बताया है कि उनकी भाषा और संस्कृति से पता लगाया है कि वो भारत में आए थे। वे पहले ईस्टर्न यूरोप में बसे थे और अब कई देशों में रह रहे हैं। स्टोरी ऑफ शेन। शेन lives in North Korea, which has a set of defined rules for his everyday living. He is currently serving in compulsory military service, in which he is expected to serve in the military till the time government decides. There are also rules about how his hair should be cut and the clothes he should wear. He cannot access the global internet and so is unaware of the world outside his own country. The government watches his every action closely and he is also expected to report about anyone who tries breaking any of the defined rules. One day, he met a tourist who asked him, "Why do you all have the same haircut here?" To this, Shane responded, "We all want to explore new styles, but the government decides the way we शुड कीप अवर हेयर। शेन नॉर्थ कोरिया में रहता है जहां हर रोज की जिंदगी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। वह अभी सेना में अनिवार्य सेवा कर रहा है और उससे तब तक सेना में रहना होगा जब तक सरकार चाहेगी, मतलब जब तक सरकार के ऑर्डर होंगे, है ना, गवर्नमेंट के। वहां यह भी तय है कि बाल कैसे काटेंगे और कौन से कपड़े पहनने हैं। वह इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता और अपने देश के बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। सरकार उसकी हर बात पर नज़र रखती है और उसे कहा गया है कि अगर कोई नियम तोड़े तो उसकी जानकारी दे। एक दिन वहाँ पे कोई
आया, टूरिस्ट आया, ठीक है? उन्होंने उससे पूछा, तुम सबके बाल के स्टाइल एक जैसे क्यों हैं? तो शेन ने रिप्लाई कहा, हम नई स्टाइल करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने तय कर रखा है कि हमें बाल कैसे रखने हैं। मतलब गवर्नमेंट ने ही डिसाइड कर रखा है कि कैसे वहाँ पे उन सबके हेयर्स होंगे। लेट्स एक्सप्लोर। डज शेन कंट्री लुक लाइक अ डेमोक्रेसी? जो शेन की कंट्री है वो डेमोक्रेसी वाली कंट्री लग रही है या नहीं? है ना? ये आपको खुद करना है। हाउ डू यू थिंक शेन्स एवरीडे लाइफ वुड बी? आपको क्या लगता है शेन की रोज की जिंदगी कैसी होगी? वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ कंट्री? एक्सप्लेन वाई। क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे और क्यों? तो ये आप खुद कर लीजिए। Oligarchy. The word oligarchy is of Greek origin, where oligos means a few and archo means to rule or command. It is a type of government where a small, powerful group makes all the important decisions. Usually, they are wealthy families or influential people. In some places in ancient Greece, aristocratic families ruled as oligarchies. In modern times, political commentators have observed that even some democracies shows signs of oligarchy when a small group of politicians and wealthy business people hold too much influence in governance. ओलिगार्की वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है। इसमें ओलिगोस का मतलब है कुछ और आर्को का मतलब है टू रूल, है ना? यह एक ऐसी सरकार होती है जहाँ कुछ अमीर और ताकतवर लोग सभी बड़े फैसले लेते हैं। एशियन ग्रीस में कुछ अमीर परिवारों ने ओलिगार्की के रूप में रूल करा, है ना, शासन करा। आज के समय में कुछ डेमोक्रेसीज में ऐसा देखा गया है जहाँ कुछ नेता और अमीर लोग सरकार पर ज्यादा असर डालते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। Look carefully at the picture in figure 9.13 on the previous page. It depicts an elected body in the USA in late 19th century. The people shown in the cartoon are all elected members. What do you observe? What do you see at the top left corner of the cartoon? Who do you think this is making decision in this elected body? Can a democracy turn into an oligarchy? What can people do to keep democracy strong? आपको प्रीवियस पेज में एक पिक्चर दी गई है, फिगर 9.13, है ना? उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें 19th सेंचुरी के एंड में, है ना, यूएसए की एक इलेक्टेड बॉडी को दिखाता है ना, चुनी हुई सभा को दिखाता है। कार्टून में दिखाए गए लोग सभी चुने हुए सदस्य हैं। आप क्या देख रहे हैं? कार्टून के ऊपर बाईं तरफ क्या नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है इस सभा में फैसले कौन ले रहा है? क्या ये जो डेमोक्रेसी है ना, वो ओलिगोगार्की बन सकती है? अ, और लोग क्या-क्या कर सकते हैं अपने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? Why democracy matters? These different types of government shows us that democracy is not the only way in which countries are governed, but in most countries democracy is considered to be better form of government than others. Let us do a quick comparison to understand this better. Consider the characteristics below in different forms of government and fill in the blanks boxes with yes or no. दुनिया में देशों को चलाने के कई तरीके हैं, बट डेमोक्रेसी अकेला तरीका नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना? इसको समझने के लिए कंपैरिजन करते हैं और नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, उसे आप फिल कर लीजिए यस और नो से। यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अबव and how the form of government defines the lives of its citizens. In the previous table, we could see
that the representation of people's choice and the rights varies across the different forms. In a genuine democracy, the people can lead their everyday lives in the way they want. They can choose what to speak, what to wear, what beliefs to follow, and how to express themselves. All of this can be done in a democracy until and unless it harms someone else's rights. आपने अभी पढ़ा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा और यह समझा कि सरकार का तरीका लोगों की ज़िंदगी पर क्या करता है, असर डालता है। पिछले जो पीछे टेबल दी थी, उसमें हमने देखा कि अलग-अलग सरकारों में लोगों के अधिकार और उनकी पसंद का महत्व अलग होता है। एक सच्चे लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी में लोग अपनी डे टू डे जो उनका वर्क होता है वो वाली डे टू डे लाइफ की ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं। वे क्या बोलें, क्या पहने, किसको माने और किसको अपनी बात कहें, यह सब आज़ादी से कर सकते हैं। लेकिन यह आज़ादी तभी तक है जब तक किसी और के अधिकारों को नुकसान ना हो। In a democratic government, the people choose their government. The government is accountable for protecting the rights of its people and is responsible for providing basic needs to its citizens. If the government does not perform its functions properly, the people can change their representatives through elections. This ensures that there is a constant check of the people what the government does. Thus, the values and ideals of the government in a democracy should focus on the well being of all its people. Our country is democracy, and you can see many of the features of a democracy in our lives every day. It is therefore no wonder that more than half of the countries in the world have adopted democracy and democratic forms of government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। सरकार का काम ये है कि वह लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और उनकी बेसिक नीड को पूरी करे। अगर सरकार अपने काम को सही से नहीं करती, तो लोग चुनाव के ज़रिए अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं। इससे सरकार पर हमेशा निगरानी बनी रहती है। इसलिए डेमोक्रेसी में सरकार के मूल्य और आदर्श सभी लोगों के भले पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश एक डेमोक्रेसी है और हम हर दिन अपनी ज़िंदगी में डेमोक्रेसी की कई बातें देख सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के आधे से ज़्यादा देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। It is important to keep in mind, however, that even democracies have their problems. Issues such as corruption, wealth disparity, excessive control by few over democratic institutions, erosion of the judiciary independence, manipulation of information channels, and several more can cause hurdles in achieving the ideals of democracy. What can we do as individual, as a society to remain vigilant and minimize these issues and hurdles? यह याद रखना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में भी कई समस्याएं होती हैं जैसे करप्शन, वेल्थ डिस्पैरिटी, एक्सेसिव कंट्रोल बाय फ्यू over democratic institution, erosion of judiciary independence, है ना, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है जैसे भ्रष्टाचार, अमीर और गरीबी के बीच बढ़ता फर्क, कुछ लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ज्यादा कब्जा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कमजोर होना, सूचनाओं और मीडिया का गलत इस्तेमाल और कई अन्य समस्याएं। ये सब लोकतंत्र के आदर्शों को पाने में रुकावट डाल सकती है। तो हम एक व्यक्ति और समाज के रूप में क्या कर सकते हैं ताकि सतर्क रहें और इन समस्याओं को कम कर सकें? तो यहाँ पे आपका चैप्टर 9 का
सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।